So today we are going to discuss radiation pollution. So just हमें इस lecture में जानना है कि what is radiations, how many types of the radiations, and what are the effects of radiation pollution, and how we can control the radiation. So mainly radiation, that is refers to the process of you can say it is mainly related with the passage of energy between the places, one place to other place, through the space, and it is mainly generated by the sun, or that are important for you can say the regulation of the temperature of the earth. There are various way of the classification. However, one important, that is the ionizing and non-ionizing type of the radiation. So ionizing radiations means that have the capacity to ionize an atom or particles. Non-ionizing में उसके पास ionizing capacity नहीं होता है. So इसके पास ionizing में बहुत ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज करता है वहाँ पे, और मेनली इसके पास जो एबिलिटी होता है, that is to penetrate the various types of the biological tissues and thereafter deposits its energy in them. Ionizing radiation जो है that is mainly represented as with the radiations that have very high energy, and it is mainly represented by the alpha beta particles, or somewhat you can say the alpha beta gamma rays, and because these particles are mainly associated with the ionization of the molecules or atoms, we can say. But ionizing and non-ionizing radiations के बीच में जो मेजर environmental pollution का source है, that is the ionizing radiations. ये also produce होता है lithospheres में directly from the space. Non-ionizing radiations है generally इसके पास एनर्जी नहीं होता है. ये we can say ये solar radiations का एक part हो सकता है, but somewhat you can say it have the capacity to cause superficial damage or injury to the living cells. जैसा कि इसके पास एनर्जी ज़्यादा नहीं होता है, so इसके पास जो biological materials है और biological tissues है, जो living cells है, उसके पास penetrating capacity नहीं होता है. Some commons है, that is the ultraviolet rays. Ultraviolet rays मतलब we can say that may be classified or categorized as ionizing radiations as well as the non-ionizing radiation. Non-ionizing जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास उसके लिए स्कोप्स नहीं है डिस्कस करने का. अदर भी जो non-ionizing जो रेडिएशन मटेरियल्स है, that is रेडियो वेव है, माइक्रोवेव से जो इमिट होता है वो है, ये सब और भी बहुत सारे हैं, आप उसको देख सकते हैं. आयनाइजिंग रेडिएशंस को अगेन जैसे कि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के लिए वेल नोन सोर्स है रेडिएशन का, तो इसे अगेन हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है. जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स वी कैन से ऑन द लिविंग सेल्स, दैट इज ड्यू टू द आयनाइजिंग रेडिएशंस. So ionizing radiations may be electromagnetic radiations or particulate or corpuscles radiations. Electromagnetic होता है, that is the emitted by the sunlight. However, particulate or corpuscles radiations produced by the, you can say, the components of the atom, that is the electron, proton and neutron, जो भी related होता है, that is the particles से और atoms के जो भी components हैं उससे ये related होता है. Certain examples हैं electromagnetic radiations के, that is the ultraviolet ray, infrared, gamma ray, X-rays और somewhat microwave और radio waves, जो कि ये बताए थे कि that are non-ionizing radiations that may classified. बहुत confusing है थोड़ा सा, but उतना ज़्यादा हमें दिमाग में इसको नहीं रखना है. ये well known forms है electromagnetic radiations के. अल्ट्रावायलेट रेड ये जानते हैं जैसा कि सन से इमिट होते हैं और have some types of the effects on the, you can say, the living materials. इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर में है, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कैन बी अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कॉस्मिक टाइप्स, ये सब जो है पार्टिकुलेट रेडिएशंस के कैटेगरी में आते हैं. अब इसके कुछ सोर्सेस हैं, नेचुरल सोर्स है, मैन मेड सोर्स है. सो नेचुरल सोर्स में मे बी वन इज द कॉस्मिक रेज, ये आउटर स्पेस से जनरेट होता है, लेकिन इसका हम पे कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि
ये जैसे जैसे एटमॉस्फेयर से पास होते जाता है, डिफरेंट यू कैन से द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ये वीकेंड होते जाता है। इन्वायरमेंटल नेचुरल में भी सोर्स हैं, दैट इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, एटमॉस्फेरिक रेडिएशंस। दैट इज टेरेस्ट्रियल में आप देख सकते हैं, जो कि हमारे टेरेस्ट्रियल मीन्स जैसे जितने भी इकोसिस्टम हैं 2 पार्ट में क्लासिफाई होता है ना, टेरेस्ट्रियल एंड इको। तो जो भी लैंड है और लैंड एसोसिएटेड है इन्वायरमेंट है, और वी कैन से सिंपली ह्यूमंस जो इन्वायरमेंट है वहाँ जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल सॉइल, रॉक और बिल्डिंग्स में ये सब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, दैट आर क्लास यू कैन से दैट नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। इसमें थोरियम, यूरेनियम, रेडियम और आइसोटोप्स ऑफ द पोटेशियम, ये सब आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के पार्ट हो सकते हैं। पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं वी कैन से। एटमॉस्फेरिक रेडिएशंस में राडॉन और थोरॉन है, ये मेजर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं। लाइकवाइज एक सर्टेन टाइप्स ऑफ द इंटरनल रेडिएशंस भी होता है, जो कि बॉडी टिश्यू में जैसे बहुत सारे पढ़े होंगे आप टॉक्सिकोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स में, कि ये बॉडी में बहुत सारे रेडिएशन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होता है, वो बॉडी में सिंक हो जाता है, जाके डिपोजिट होता है। सो सर्टेन टाइप्स ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक यूरेनियम, थोरियम और उसके रिलेटेड जो भी सब्सटेंसेस हैं, आइसोटोप्स ऑफ पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, कार्बन, ये सब को स्टोरेज प्रॉपर्टी है और बॉडी सिंक प्रॉपर्टी है। सो दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल रेडिएशंस। बॉडी के किसी ऑर्गन्स में आइदर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में जाके ये डिपोजिट्स हो जाते हैं। कुछ मैन मेड्स हैं और आर्टिफिशियल जो रेडिएशंस के सोर्स हैं, लाइक बाय एक्सरे मशीन जो कि एक्सरे इमिट करता है मेडिकल और डेंटल क्लिनिक्स पे। रेडियो एक्टिव फॉल आउट जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बाय मिस्टेक और जैसे भी है किसी न किसी कंडीशन से आप जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उस कंडीशंस में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, और दैट्स में भी कार्बन, स्ट्रोंशियम, आयोडीन और कैल्शियम, ये सब आप रेडियो एक्टिव फॉल आउट और यू कैन से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जो रिलीज होने वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं वो हो सकते हैं। ऐसा जैसा कि ये जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं इसके सेल्फ लाइफ होता है और हाफ लाइफ, वी कैन से हाफ लाइफ डिकेइंग वाला, डिकेइंग प्रॉपर्टी जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। लाइकवाइज स्ट्रोंशियम 90 और कैल्शियम 137, ये जो है स्ट्रोंशियम 28 ईयर तक हाफ लाइफ है इसका, और कैल्शियम का 30 ईयर तक है, और ये लार्ज अमाउंट में रिलीज भी होता है आप इसके। तो इस अफेक्ट्स जो सीन होता है देखने में जो आता है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस के। ठीक है, कुछ रेडियो रेडिएशंस यूनिट हैं, इसमें से एक आध तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो रेडिएशंस बहुत सारे यूनिट्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। लाइकवाइज क्यूरी भी समटाइम्स यूज होता है, दैट इज द यूनिट ऑफ डिके व्हिच रेफर्स टू 37 बिलियन एटम डिकेइंग पर सेकंड। जो भी है ये देख लीजिएगा आपको। और सॉरी, जो मेन चीज है दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो इसका इम्पैक्ट मेजर जनरली जो होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ द डोज करते हैं, और डोज जो है मेजर्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ द राड और इन टर्म्स ऑफ द रेन। सो राड इज द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज, और सिंपली वे में कह सकते हैं कि एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ द मटेरियल एक्सपोज्ड। सो राड दैट इज द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज, ये आप एनर्जी जितना भी पर यूनिट किसी भी मटेरियल के द्वारा जो एक्सपोजर होता है उसको दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द राड, एंड 100 अर्ग पर ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 राड। ये सब देख लीजिएगा, अर्ग वगैरह आप लोग को बेटर अभी याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। सो जो मेजर पहलू है, मेजर टर्म है रेम, दैट इज ये तो एक्सपोजर के लिए राड हो गया, कितना आप एनर्जी से एक्सपोज हो रहे हैं, आपके पर यूनिट एरिया जो एक्सपोज हो रहा है, बट how much effect of radiations on the biological materials, that is measured in terms of the REM, that is Röntgen equivalent man. Some जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मे बी रेडियोलॉजिस्ट और डेंटल, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूनिट है that is the R, that is Röntgen, और मेनली ये एक्सरे एग्जामिनेशन वगैरह में ये यूनिट एक्सप्रेशन यूनिट जो है ये यूज होता है, जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स में आते हैं। आइदर राड और रेम पूछा जाता है आपसे, क्या है ये।
बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन रेडिएशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट इस रेडिएशन पोल्यूशन से कहीं ना कहीं ये आपको हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलता है। आप ठीक है, सो इसके जो इफेक्ट्स हैं बायोलॉजिकल मटेरियल पे, दैट इज जैसा कि मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द रेम, और ये जो देयर आर टू we can say the types of the effect on biological materials of the radiation pollution. One is the somatic effect and other is the genetic effect. Somatic effect again categorized into two types, that is one is the immediate effect and other is the delayed effect. So immediate effect means अगर high dose से आप one time expose हो रहे हैं, that may leads to the certain types of the you can say the syndromes, and that is most commonly known as radioactive sickness or acute radiation syndrome. That is both things are common, and it is mainly characterized by the nausea है, vomissions है, dizziness है, we can say skin burns है, और red patches on skin है, burning sensation है. So ये सब जितने vomissions है, तो ये सब जितने भी जो acute मैंने तुरंत आपके एक्सपोजर होने के बाद मेनली जो 100 रॉड से आप जॉब में आप एक्सपोज होते हैं, सो मे बी इट्स टू द वोमिटिंग, फैटिग, ये सब सिम्टम्स इसमें दिखते हैं आपको। थका महसूस करना, बर्निंग होना, इचिंग होना, रेडनेस स्किन आ जाना, नौसिया, वोमिशन जैसा लगना, वीकेंड से, ये सब जितने भी इमीडिएट रेस्पॉन्स ये सब आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशंस। एंड जो डिलेड इफेक्ट है उसमें भी इमीडिएट में आप बहुत हाई डोज जैसे 400 to 500 रेंजन पे आपका पूरा बॉडी जब एक्सपोज होता है, तो उस कंडीशंस में 50% फैटिलिटी रेट होता है उसका। एंड अगर और हायर डोज 600 और 700 रेंजन्स में होता है, सो आदमी 100% फैटल होता है। सो इन इफेक्ट मे बी डेफिनेटली वी कैन से डिपेंड्स अपॉन द you can see the type of radioactive materials, dose of the radioactive substances, exposure dose we can say, ये सब responsible होता है कि हाँ which type of the immediate effects we have. Second जो है somatic effect में delayed effect है, that is बहुत समय, लंबे समय के बाद, that occurs after a long period of time of exposure, and that is maybe due to the that one of delayed response may be leukemia, carcinogenesis, fetal abnormalities, shortage of lifespan. Second जो type of effect है, that is genetic effects. It may be either associated with the chromosomal mutations or either associated with the point mutations. और chromosomal mutations में generally mainly जो effect होता है radioactive material का, that is the chromosomes that is associated with the sterility, and point mutations may affect the functions of the, you can say, the particular genes, or may alter the functions of the particular genes. ये कुछ इमेज हैं जिसमें आप रेडिएशन सिकनेस के एटलीस्ट कुछ सिम्टम्स का नाम दिया हुआ है। तो each and every we can say the visceral organs gets affected in radiation sickness, and there are certain symptoms given here like blood cell change, nausea, vomiting, hair loss, diarrhea, hemorrhage, possible death, destruction of internal bleeding. Likewise ये सब जो भी है, ये सब रेडिएशन सिकनेस का कुछ सिम्टम्स हैं। और सिंड्रोम डेफिनेटली ये सिंड्रोम है, तो इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। नाउ कंट्रोल, so control may be by the monitoring and prevention of the leakage of the radioactive substances either from the natural as well as man-made source. Care, we must have care to handle the radioisotopes and managing the atomic power reactors. तो इसको जो भी वहाँ हैंडल कर रहे हैं उनको सावधान रहना है। So disposal of the radioactive waste must be done under strict supervision, so there is no leakage of to contaminate food and water and air. आप दिल्ली वाला केस सुने होंगे, कबाड़ी वाला लेके उठा के लेके आ गया था और 30 मीटर और लाइक एरिया में अच्छे खासे एरिया जो सराउंडिंग एरियाज तो कबाड़ी से
सारे उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से। सो इसलिए इसको डिस्पोजल जो भी है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का, उस गाइडलाइंस के तहत ही कोई भी रेडियो एक्टिव और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सब्सटेंसेस और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसका डिस्पोजल होना चाहिए। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आर मेनली कैरिड आउट बाय दैट नो स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन अलाउड। वैसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ से न्यूक्लियर फॉल आउट हो जाए। सो इस वे में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दैट दीज आर ऑल आर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, हमें इसमें कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं। सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस शुड बी shielded with the help of appropriate materials। ये भी हम जनरली हमारा जो मेनली कंसर्न है that is with the persons that are mainly engaged with the radiation से लेबोरेटरी, जैसे अपना क्लिनिक्स है। सो क्लिनिक में रेडियो एक्टिव जो यूनिट में ये एक्सरे यूनिट है, वहाँ पे आप अपना जो पर्सनल प्रोटेक्शंस एज वेल एज जो भी सराउंडिंग्स में हैं आपको उनके प्रोटेक्शंस जो भी वहाँ गाइडलाइंस हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। समवेयर में यूज ऑफ द फिल्म बैच और क्रिटिकलिटी लॉकेट्स जो होता है, ये जो कि आपको एक्सपोजर डोज को और भी है, लीड का जो एप्रॉन होता है, दीज ऑल थिंग्स आपको यूज करना है ताकि आप प्रोटेक्टेड रहिए। आप जितने डोज से एक्सपोज हो रहे हैं वो मेजर्ड होता रहना चाहिए। सो डोज मीटर्स में बी यूज टू मॉनिटर द एक्सपोजर डोज, नेसेसरी प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स यूज होना चाहिए। एंड फाइनली द रिकमेंडेशंस जो भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो दिया गया है उसको कंसीडर करना चाहिए। ये कुछ इमेज से हैं, अभी के डेट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए कि सर ये मोबाइल में ले लीजिए, ये आपको रेडिएशन जो भी इससे होगा इमिशन उससे प्रोटेक्ट करेगा, बट हाउ आई डोंट नो। and these are certain equipments that are used at you can say the x-ray, जहाँ पर ये यूनिट्स होता है वहाँ आपका लीड जैकेट और ईच एंड एवरीथिंग यूज होता है। और विशेषली आप इसका जो भी है एक रेडियोलॉजी कोर्स आता है सर्जरी में पढ़ना, आप वहाँ विशेष पढ़िएगा। ठीक है, हाँ जी बताइए, कुछ बोले थे कुछ पढ़ के आएंगे सर?